فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. بڑی معذرت کے ساتھ تاخیر زیادہ ہو گئی اور اندازہ یہ تھا کہ آپ کے امام صاحب قبلہ اس وقت تک یہاں بیان کر رہے ہوں گے اور میں سفر سے ابھی آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں اور زندگی پوری سفر بن گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. میرے عزیزوں، کچھ اہم چیزیں آج کے دور کے تقاضے کے مطابق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمارے لیے سب سے اہم مسئلہ کیا ہے جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. مسئلے تو بہت ہیں، پریشانیاں، مشکلات اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن انسان عقل مند وہ ہے جو یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے فوکس کس پہ کرنا ہے. جس دن اسے یہ سمجھ آ جائے گی کہ پریشانیاں تو 100 ہیں، 150 ہیں، 200 ہیں، لیکن ان میں سے اہم چیز کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ حل سمجھ جائے گا اور وہ اپنے وقت کو اور اپنے انرجی کو، اپنی زندگی کو ضائع نہیں ہونے دے گا. آج زندگی کے بے شمار مسئلے ہمارے ساتھ، لیکن ہم الجھے ہوئے کس پہ ہیں؟ کن باتوں پر ہم ڈسکس زیادہ کرتے ہیں؟ کون سی چیزوں میں ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں؟ یہاں پر آ کر ہمیں تنبیہ کرنا پڑتا ہے. جب گھر پر آگ لگی ہو تو آپ آٹے، چاول اور نمک کے لیے جھگڑا نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ آپ کے لیے اہم مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر کی چار دیواری کو محفوظ کر لوں. تو مسائل میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ چھوٹا کیا ہے، بڑا کیا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں. اللہ 1000 بار نہ کرے کسی کے گھر میں اگر آگ لگ گئی اور پورا گھر آگ کی لپیٹوں میں جھلس رہا ہے اور اس گھر کے اندر آپ کا ایک بچہ چھوٹا سا پھنس گیا ہے. آپ کسی طرح گھر کے اندر داخل ہوئے اور بچے کو قریب تھا کہ آگ اپنی لپیٹ میں لے لیتی، بچا سکتے تھے آپ، لیکن ساتھ میں بچے کے قریب میں ایک سوٹ کیس بھی پڑا ہوا ہے جس میں بہت ساری آپ کی رقم، کمائی ہوئی محنت کے پیسے سب اس میں رکھے ہوئے ہیں. آگ اسے بھی پکڑنے والی ہے، ان قریب وہ بھی آگ کی لپیٹ میں پورے مال و دولت جلنے والا ہے آپ کا. اب فیصلہ آپ کے پاس ہے، وقت بہت شارٹ ہے. ایک طرف وہ پیسوں کے اور بہت سارے مال کا سوٹ کیس ہے اور ایک طرف آپ کا عزیز جان بچہ ہے. کس کو بچانا چاہیے؟ ایک عقل رکھنے والا بندہ صاف سی بات ہے وہ سوٹ کیس کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اپنے جان سے زیادہ پیارے بچے کی جان کی حفاظت کرتا ہے. کیونکہ عقل میں اتنی بات تو ہے، اتنا سینس سب کو ہے کہ مال پھر کمایا جا سکتا ہے لیکن جان بچانا زیادہ ضروری ہے. اگر بچہ ہمارا بچ گیا تو مال پھر سے آ جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں آپ کا سینس کام کر گیا. آپ کو اللہ نے اتنی تمیز عطا کی ہے کہ آپ بڑا مسئلہ کون سا ہے، چھوٹا مسئلہ کون سا ہے، اس وقت آپ پہچان گئے اور آپ اپنے بچے کو جلنے کے لیے چھوڑ دیتے اور پیسے گننے پر بیٹھ گئے ہوتے، سوٹ کیس اٹھانے پر بیٹھ گئے ہوتے، تو گویا کہ آپ دنیا کے سب سے بدترین بے وقوفوں میں اور بلکہ سیلفش لوگوں میں، بلکہ اس سے زیادہ یہ کہ اپنے گھر والوں پر بھی گھر والوں کے لیے بھی نہیں جینے والا بندہ بن کر کے سامنے آتے.
दुनियादार, हवस परस्त, लालची सब चीजें आ जाती हैं अगर छोटे मसलों पर आप अपनी एनर्जी जाया करते। एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखी। इस तरह मेरे अजीजों, आज उम्मत के बेशुमार मसाइल हैं। उम्मत किन किन मसलों से घिरी हुई है, हमें उन चीजों पर डिस्कस की बजाय आज बाज़ाब्ता तौर पर माइंड डाइवर्ट करके छोटे मसलों पर लगाया जाता है खास तौर पर। और हमने तो इन तमाम चीजों में बहुत सारे उलमा को भी देखा, उनको जिन मसाइल के लिए आज कमर बस्ता होना चाहिए, पूरी कौम और उम्मत के लिए एक मुर्शिद की हैसियत से सामने आना चाहिए, उन मसाइल को छोड़कर वो बहुत छोटे से मसाइल में डिबेट कर रहे हैं। छोटे से मसाइल में एक दूसरे के इख्तिलाफात को पूरे मजमे में लाकर जाहिर कर रहे हैं। तो ये बात ये है जो सेंस के खिलाफ है। आज उम्मत के लिए मसाइल कितने बड़े बड़े हैं। मैं मानता हूं नशा आम है हमारे यहां, और हमारे यहां इल्म की कमी बहुत ज्यादा हो गई, अखलाक की कमी बहुत ज्यादा हो गई है। हमारे यहां सूद आ गया है, जुआ आ गया है, शराब आ गई है, सब आ गया है। हमारे मोहल्लों में ये भी मसाइल हैं जिससे हम जूझ रहे हैं। लेकिन इन तमाम मसाइल में जो सबसे बड़ी आग लगी है वह है इज्जत मुस्तफ़ा की हिफाजत। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत। ये सब आसानी से एक साथ नहीं हुआ, स्टेप बाय स्टेप होता रहा। आज जो दरिंदे खुल करके इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, रसूल पाक की जात के खिलाफ भौंक रहे हैं, ये तुम्हारा लास्ट स्टेज था। यहां आजमाइश तुम्हारी है कि आप मसाइल में किन मसाइल की तरफ आप ज्यादा तवज्जो देंगे। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मसला तुम्हारा दीन है, तुम्हारे नबी पाक की इज्जत है। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। पूरी कायनात के लिए वो जान है। अगर उनका नाम सलामत है तो हम सबकी जिंदगी सलामत है, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है हमारे साथ कि दुनिया में तुम्हें किस लिए भेजा गया है, वो रसूल पाक की अमानत बनाकर, उम्मत बनाकर भेजा गया है। अगर उनके लिए आप सीरियस नहीं हो सके और छोटे छोटे मसलों में सीरियस बन गए तो गोया कि आप वही काम कर रहे हैं जो मैंने एग्जाम्पल में दिया, मिसाल में दिया। घर पर आग लगी, आप अपने बच्चे को बचाने की बजाय अपने माल की तरफ देख रहे हैं। आज मेरे अजीजों, क्या इख्तिलाफात इस कदर नहीं आम हो गए हमारे यहां तो वो भी मामलात हैं कि माँ और बेटे के इख्तिलाफात इतने ज्यादा कि दोनों कोर्ट में जा चुके हैं। सिर्फ छोटी सी बात को लेकर बेटा कटहरे में इस तरफ खड़ा है, माँ उस तरफ खड़ी है, दोनों के वकील अलग अलग हैं और लड़ाइयां बड़े जोर शोर से, भाई भाई के हैं, बहन भाई के हैं प्रॉपर्टी को लेकर। और मुद्दतों कोर्ट में 25 साल 30 साल गुजर गए एक टुकड़ा जमीन के लिए, और वो भी ऐसा कि कोर्ट ने पूरी जिंदगी भर तुम्हें घुमाया फिराया, तुम्हारी चप्पल घिस गई, जिसके लिए तुमने बड़ी बड़ी नफरतों की दीवारें खड़ा कर रखी थी, तुम्हारे लिए उसकी एक बालिश्त जगह भी जिंदगी में मिल ना सकी। यूं ही दुनिया से चले गए और मर गए। तो जो ला यानी चीजें हैं उसके लिए इतनी एनर्जी जाया करना, ये बेवकूफी है। आज मैं यही बात कहना चाहता हूं, उम्मत को जिन मसाइल की आज जरूरत है उस पर डिस्कस भी हो, उसके लिए लाए अमल भी तैयार करें। लोग आकर के आज ये मसाइल जरूर रखें। देखें, आज मुहर्रम का ये महीना चल रहा है, इसको आप मेरी तनकीद ना समझे और ना ही मैं कोई गुस्ताख हूं। मैं मौला इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का पैदाइशी शहदा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे घरों से ये गुट्ठी में पिलाई हुई मोहब्बत है, लेकिन मुहर्रम के आते ही जितना एक्टिव हमारे मोहल्ले होते हैं, सारे जगह पर एक जगह 51 देग खिचड़ा बना है,
दूसरी जगह कंपटीशन में 100 देग खिचड़े बनाए, 51 देग, 100 देग, ठीक है पकाओ खिलाओ। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, खिलाना सवाब है। किसको खिलाना? पेट भरे हुए को खिलाना। यहां तो हाल ये है जो खुद घर में खा खा कर मोटे हो चुके वही खिचड़ा खाने भी आ गए। कोई ऐसा बंदा तो हमें नजर नहीं आया जिसके घर में एक रोटी भी नहीं मिलती और वो आकर के खा गया हो तो उसके लिए सवाब ही सवाब है। गुरबा और मसाकीन को खिलाना बहुत बड़ा सवाब है। सरकार गौसे पाक ने तो फरमाया, मैंने सारी नेकियां उलट पलट कर देख लिया, सिर्फ 2 नेकियां ऐसी नजर आई जो रहमान को सबसे ज्यादा महबूब है। उन्होंने अपने मलफूजात में लिख दिया है, फरमाते मैंने सारी नेकियां छान कर देख ली, 2 नेकियां जो सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है, एक भूखों को खिलाना, दूसरा नंगों को कपड़ा पहनाना। लेकिन ये शर्त बताई कि भूखों को खिलाने का मतलब यह है कि जो गुर्बत और अफलास की वजह से खा नहीं पाता। मेरे इस कहने का मतलब ये नहीं है कि अमीर लोग खिचड़ा नहीं खा सकते, तबर्रुक नहीं खा सकते हैं। हम भी खाते हैं, आप भी खाएं, सारे लोग खाएं। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा कुल असासा ला करके क्या इन्हीं सारी चीजों पर ही खर्च करना है? उम्मत के लिए ऐसे मसाइल हैं, पूरे मोहल्ले में घूम फिर करके हम देख लें, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कोई ऐसा कोचिंग सेंटर नहीं मिलता जहां पर गरीब बच्चों को पढ़ा करके IAS या IPS तक की तालीमात दी जा सके। उसके लिए कोई सोचता भी नहीं। और ना ही कोई ऐसा इदारा मिलता है मोहल्लों में कि बच्चा हमारा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है तो साथ में चल करके हाफिज कुरान भी बन जाए। ढूंढ करके निकालो, नहीं मिलते। हमारी लाखों की एक मुश्त रकम जो है सिर्फ हमारे एक वक्त के खाने में चली जाती है। एक वक्त के खाने में। मैं आपको ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं, जब मसाइल बहुत ज्यादा हैं तो जो इंपॉर्टेंट मसला है उस पर अपनी एनर्जी खर्च करना चाहिए, उस पर डिस्कस भी हो और उसके लिए अमल भी हो। और एक बात मैं आपको बताऊं, इजराइल की एक प्राइम मिनिस्टर लेडी रह चुकी है, उसका एक इंटरव्यू एक पत्रकार ने, एक सहाफी ने लिया था, जिसको बाद में चल करके कई सालों के बाद लीक किया गया। उसने इंटरव्यू में जो पूछा था उस लेडी से, जो प्राइम मिनिस्टर थी इजराइल की, कहा कि आपकी बहुत बड़ी मुखालफत हो रही है कि आप एक ऐसी पॉलिसी पर अमल कर रही हैं जिससे पूरा मुल्क जो है आपके साथ नहीं खड़ा है। पार्लियामेंट के जितने मेंबर हैं वो आपके लिए इत्तेफाक नहीं रखते। क्या बात है? कहा ये वो दौर था जब इजराइल में क्राइसिस थे, माल की कमी थी, लोगों के यहां बिजनेस नहीं था, तिजारत नहीं थी और जॉब नहीं थे। उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है वो असलहात की डील कर रही थी, डिफेंस के सामान, असलहे खरीद रही थी और उस पर सिग्नेचर हो रहे थे, एग्रीमेंट बन रहे थे। तो पार्लियामेंट के बहुत सारे लोग इसकी मुखालफत कर रहे थे। आज जरूरत किस बात की है और तुम क्या कर रही हो? खाना पानी इनको नहीं मिल रहा है, इनको खाने पानी का इंतजाम करवाते, ना कि तुम जो है डिफेंस के हथियार खरीदती। उस खातून ने कहा सबकी मुखालिफत झेल लिया, लेकिन मुझे जो करना था मैं कर गई। उस पर उस एंकर ने पूछा कि आप ऐसा काम क्यों जिद पर कर रही हैं? सुनो मेरे अजीजों, वो यहूदन है, यहूदी, इजराइल की रहने वाली, और प्राइम मिनिस्टर कहती है मैं ये काम जो कर रही हूं, इस काम में मैं इंस्पायर हूं, बहुत ज्यादा मुतासिर हूं तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मुसलमानों के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कहा वो कैसे? कहा कि उन्होंने जिंदगी में जो इस्लामिक सल्तनत स्टैब्लिश कर दी मदीना तैयबा में,
हालात उनके भी उस वक्त ऐसे थे कि एक खजूर पर उनके सहाबा पूरा दिन गुजार लेते थे, गुठली चूस करके रह जाते थे। एक प्याला दूध का मिल जाता तो 10 लोग पी लेते थे। और वो कहती है, मैंने उनकी तारीख पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी है, जिस दिन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ उस दिन उनकी बीवी के घर हजरत आयशा सिद्दीका के घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। जिस दिन हुजूर पाक का इंतकाल हुआ उस दिन चिराग जलाने का तेल भी नहीं था। वो ऐसी सादी जिंदगी तो गुजार गए, लेकिन वो खातून कहती है चिराग जलाने के लिए तेल तो नहीं था, लेकिन सबसे कीमती और सबसे अजीम उस जमाने के 9 तलवारें उनकी दीवार पर लटकी हुई थी। गोया कि उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मैसेज दिया था कि खाना एक वक्त का खाकर निगल लोगे, दूसरे वक्त फिर भूख लगेगी, दूसरे वक्त का खा लोगे, तीसरी भूख फिर लगेगी। लेकिन तुम्हारे लिए उम्मत के डिफेंस के लिए जो चीज चाहिए थी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त की जरूरत को महसूस करके पहले से मैसेज दिया था। वो इजराइली यहूदन कहती, आज मेरा ये अमल हो सकता है 40 साल बाद आने वाली मेरी कौम देखकर फख्र करेगी कि हमारे लिए कितनी महफूज पनाहगाह ये बना करके चले गए। मेरे अजीजों, मैं तारीफ के लिए नहीं कह रहा, बात ये कह रहा हूं, ये होती है कौमों की तामीर। आज हम तो खिचड़ों में रहे, खिचड़ा नाजायज नहीं है, खाना चाहिए, अच्छा है, घर में बनाओ, जब मन करे खाओ, लेकिन उसके लिए अपने लाखों रुपए की लागत मोहल्लों में इस तरह से तकसीम करके खत्म कर देना। हाँ, उसको हक बनता है वो हलवा भी खाए, खिचड़ा भी खाए, लेकिन साथ में उम्मत मुस्तफा के मुस्तकबिल के लिए इमारत भी खड़ी करे, उसको यह हक बनता है। मेरे अजीजों, मुझे एक बात याद आती है, हमारे एक उस्ताद, उनकी ये सोच थी, वो मिसाल के तौर पर मैं अर्ज कर रहा हूं। हमारे एक साथी ने हमारी शिकायत की कि हज़रत जो कपड़े पहनना है सारे तलबा को, उसके अलावा एक्स्ट्रा ये कपड़े पहन लेता है। मेरे बारे में कहा ये सदरी पहन लिया या जैकेट पहन लिया, कहा जो स्टूडेंट्स तलबा पहन रहे हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा ये। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, मैं सबको बराबर देखना चाहता हूं, किसको क्या पहनना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने एक जुमला कहा था उनको शिकायत करने वालों को, कहा इसकी तरह 4 सफ़े सबक तू भी सुना दे और तू भी इसी कपड़े पहन ले। हाँ, अगर किसी काम में तुम पूरे उतरे हुए हो और दूसरा तुम्हारी दीगर जरूरियात भी पूरी कर रहे हो तो कोई मसला नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बड़ी बड़ी नियाजें करें, लेकिन उस वक्त जब उम्मत की मुस्तकबिल की जरूरियात पूरी हो रही हो फिर खाना भी खिलाएं, देगें भी चढ़ाएं, अच्छा है, उर्स भी करें। यहां हालात तो ये है कि हम यतीमी के हालत में आ गए हैं आज। मियां कितने तो ऐसे हमारे मुसलमान कपल्स हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर क्रिश्चियन स्कूल के बाहर खड़े करते हैं और एडमिशन के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, और उनको कितनी मर्तबा वहां पर ईसाई नन हो कि पादरी हो ताने मारते हैं, टॉन्ट मारते हैं। कितनी मर्तबा ऐसी शिकायतें आई, लेकिन क्या करें। एक जगह पर मुझे खुद ये बात याद आती है, हमारे मुक्तदी थे एक हाजी साहब, अपने 2 बच्चों को एक बोर्डिंग स्कूल में उन्होंने डाला था, 4वीं और 5वीं के बच्चे, साल का 4 लाख रुपए पे कर रहे थे। और एक बार वो मुझे साथ में लेकर गए दिखाने के लिए, क्या है दिखाता हूं, कितना बेहतरीन है, 45 एकड़ में बना हुआ ये बोर्डिंग स्कूल है, सब कुछ है। मैं गया था, उनके मैनेजर से मैंने पूछा कि शेड्यूल क्या है आपका, बच्चों को कैसे आप ट्रीट करते हैं। उन्होंने सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का पूरा घंटे घंटे का शेड्यूल बताया। उसमें पूजा भी है, योगा भी है, जॉगिंग भी है, सब है।
میں نے پوچھا سارے بچے کرتے ہیں؟ کہا سب کرتے ہیں، چاہے ہندو ہو مسلم ہو، سب کو کرنا ہے یہ۔ اور جن کے بچوں کے لیے ہم گئے ہوئے تھے وہ سال بھر سے پڑھ رہے تھے، میں نے ان حاجی صاحب سے کہا وہ بڑے پرہیزگار ہیں، ایک نماز بھی قضا نہیں کرتے۔ ہم نے کہا ان کو آپ اپنے بچوں کو اتنی مہنگی پوجا کروا رہے ہیں، اتنی دور لے جا کر کے۔ تو خیر ان کو یہ بات لگی، لیکن انہوں نے جواب میں کہا ٹھیک ہے حضرت میں وہاں سے نکال لوں گا، ہمارے ہے کہاں جہاں میں اپنے بچوں کو ڈال دوں۔ یہ بھی تو سوال ہے، یہ بھی تو سوال ہے۔ ہم نے اپنے مستقبل، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی لایا عمل بنانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ فکر کرو میرے عزیزو، آج ضرورت اس بات کی ہے۔ میں تو یہاں جب بھی آتا ہوں ہر بار آپ کے اراکین صدر صاحب بیٹھتے ہیں، اکثر یہی پلاننگ کرتے بھی رہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ کام ہونا چاہیے، لیکن یہ صرف پلاننگ میں ہی رہ گئے تو ہماری عمریں بھی پلاننگ میں چلی جائیں گی۔ کر جاؤ کچھ نہ کچھ، اس لیے کہ ہمارے بچوں کو جو پھل ملنے والے ہیں وہی انقلاب لائیں گے۔ اور الٹریسٹی اتنی بڑی ہوئی ہے، آپ جو دیکھ رہے ہیں نا ماحول کی خرابی، اکثر آ کر جو شکایت کرتے ہیں بچے نشہ خور ہو گئے، ماں باپ کے نافرمان، سب بہت کچھ ہے، لیکن سب کا علاج یہ ہے کہ ان کو علم دین اور علم دنیا سے روشناس کرائیں، اس لیے کہ علم تہذیب لاتا ہے، اخلاق لاتا ہے، اور علم نہ ہو تو جہالت کے پیٹ سے سب برائیاں جنم لیتی ہیں۔ ہر برائی وہ کر جاتا ہے جہالت میں۔ اور آج حالات ایسے ہیں کہ دوسری قومیں ہماری طرف دکھا کر کے یہ تانا مارتی ہیں۔ ابھی کل رات میں جس علاقے میں تھا لکھنؤ کے قریب، اور صبح لکھنؤ سے میں ابھی آ رہا ہوں، گئے پورا علاقہ مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ایسا ہے کہ گاؤں میں جانے کے لیے کوئی کار بھی جا نہ سکے، اس طرح سے گڑھے بھرے ہوئے ہیں، اتنے گڑھے۔ اور پڑوس کے قریب میں چھوٹا سا گاؤں ہے نان مسلم، پکی سڑکیں، ساری چیزیں۔ اس پر بات کریں تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ تعصب ہے حکومت کا، ان کے ہاں یہ سب ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے۔ میرے عزیزو ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، بات صرف یہ ہے کہ تم نے جینے کا سلیقہ خود ہی بنا لیا ہے اپنے دماغ سے کہ ہمیں رہنا ایسی ہے۔ ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں کے سامنے کوڑا کرکٹ کا ڈھیر پڑا رہے، کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے تو خود ہی مائنڈ بنایا ہوا ہے۔ علم آئے گا تو اخلاق بھی لائے گا، تہذیب بھی لائے گا۔ آپ مدینہ طیبہ جا کر کے دیکھیں، آج بھی الحمدللہ دنیا کا سب سے حسین، ویسے عقیدتاً تو ہے ہی، لیکن ظاہراً بھی جا کر کے دیکھیں تو اس سے پاک و صاف شہر نہیں ملتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت ہے جو ہمیں وہاں آج بھی نظر آتی ہے۔ ارے گلیوں میں چلو تو بھی خوشبو آتی ہے۔ یہ صرف عقیدت اور روحانیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے خوشبو آرٹیفیشیل بھی بنا کر کے رکھی ہوئی ہے کہ کوئی گزرے تو اس کو یہاں کہیں مہک نہ آنا چاہیے، کیونکہ مدینے آئے تو بندہ یہ اخلاق لے کر کے جائے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفائی کے لیے اور کس قدر اپنی امت کو پاک کرنے کی فکر رکھتے تھے۔ آج یہ سب مسائل پر ہمیں انرجی لگانے کی ضرورت ہے، لیکن ہم کن چیزوں پر پڑے ہوئے ہیں؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر، ارے 2 گھڑے پانی اگر ہم کو نہ ملے تو ہم تو پینچے چڑھا کر کے جھگڑے پر آ گئے ہیں۔ ہم کو اگر چھوٹی سی زمین کا مسئلہ ہو تو ہم 25 سال بھی لڑنے کو تیار ہیں۔ یہ مسائل نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو سوشل میڈیا پر آج مناظرے کا اڈا بنا ہوا ہے، ایک جماعت اس جماعت پر، اس جماعت کو اس جماعت پر۔ اور ابھی ایک مولانا صاحب نے مجھ سے شکایت کیا، کہا کہ کچھ لوگوں نے ہمارے خلاف ایسا بیان کر دیا کہ اس مسجد میں نہ جائیں، یہ امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ ہم نے پوچھا کہ کیا ان کو تکلیف کس بات کی ہے؟ کہا وہ ایسا ہے کہ سلسلے کی لڑائیاں، وہ دوسرے پیر صاحب کے مرید ہیں، ہم دوسرے پیر صاحب کے مرید ہیں، لیکن اس
सिलसिले की लड़ाई से हमने पूछा क्या वो सुन्नी है, कहा वो भी सुन्नी, आप सुन्नी, आप भी सुन्नी, और दोनों आला हजरत की शहदाई। कहा फिर झगड़ा किस बात का, कहा नहीं, वहां सब मेरे खिलाफ उन लोगों ने ये बात कर दी है कि इनके पीछे नमाज नहीं होगी इसलिए कि ये अशरफी हैं और ये फला हैं। मैंने कहा ये तो गनीमत है उन लोगों को, सोचे ईसाई तो नहीं है। इतना तासुब भरता है तो जिहालत से भरता है। और किन मसाइल पर आज तुम लगे हुए हो, यहां तो पूरी आग लगाने के लिए दरिंदे कूद रहे हैं और तुम अपने आपस में गरेबान पकड़े हुए हो। क्या आपको पता नहीं हमारी पूरी जेनोसाइड करने के प्लान बने हुए हैं, नस्ल कुशी, नस्ल खत्म करने के मामला चल रहे हैं। हमारी पूरी नागरिकता, हमारी सिटीजनशिप खत्म करने की बात, आइंदा चल करके इनको वोटिंग पावर तक ना रहे, ये प्लान है सब चीजें। वो सब चीजों को छोड़ करके हम तो किन मसाइल में उलझे हुए हैं। इसीलिए किसी ने कहा, अगरचे मुहावरा हो, तारीख से इसका ताल्लुक है या नहीं, लेकिन ये बात मुझे लगती है कि बगदाद में जब हलाकू हमला करने आया था और पूरे बगदाद की ईंट से ईंट बजा दिया था, तबाह कर दिया था उसने, पूरे बगदाद में 2 लाख से ज्यादा लाशें बिछाई गई थी बगदाद शहर में। लेकिन ये एक मुहावरतन ये बात कही जाती है, जिस वक्त हलाकू बगदाद पर हमला करने आया हुआ था उस वक्त 2 जगह जमातें मुनाजरा कर रही थी मिसवाक के बारे में, 4 इंच की होनी चाहिए कि 3 इंच की होनी चाहिए। ये तारीख से इसका ताल्लुक हो या ना हो, लतीफे के तौर पर ही क्यों ना हो, लेकिन बात मैं ये कहता हूं उसी की मिसल आज चीजें की जा रही हैं। जो अहम मसाइल हैं उनको छोड़ करके जो छोटे मसाइल हैं उन पर हमारी पूरी एनर्जी खत्म की जा रही है। आज कई मुद्दे हैं इस तरह के बात करने के, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अक्ल सलीम अता किया है तो फ्यूचर प्लानिंग करें अपने बच्चों के लिए और कुछ न कुछ ऐसी चीजें कर जाएं। एक बात और बताऊं, बिहार में इतने जलसे होते, मैं 365 दिन भी तारीख दे दूं तो भी कम है उनके लिए। हम अभी 2022 की बात कर रहा हूं, बहुत बड़े जलसे में गए, लाखों का खर्चा करते हैं, पूरी रात भर जलसा होता है। एक रिपोर्टर थे जिन्होंने एनालाइज किया था, वो मेरे पास एक रिपोर्ट ला करके बताया कि हजरत पूरे साल भर में एक ही स्टेट बिहार में 4000 जलसे हुए, 4000 जलसे, और वहां के रात भर चलने वाले जलसों को मैंने बहुत करीब से देखा है, किस कदर वहां पर एहतमाम के साथ जलसे करते। मैं जलसों का मुखालिफ नहीं, ठीक है, दीन फैलाने का एक जरिया है, लेकिन होता क्या है, उन्होंने कहा कि कम से कम एक जलसे में 5 लाख रुपए खर्च होते हैं, उससे कम नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा हमने देखे 10-10 लाख, 15-15 लाख एक रात के जलसे में वो लोग खर्च करते हैं। मिनिमम 5 लाख रुपए खर्च के हिसाब से 4000 जलसों का जब ये रिपोर्ट निकाली गई तो उन्होंने साल भर में एक ही स्टेट में, ये गरीब लोगों की बात कर रहा हूं, 2000 करोड़ रुपए खर्च किए। 2000 करोड़ रुपए रातों में ये खर्च हुए हैं। लोगों को अगर ऐसा लगता है कि मैं जलसों वाला आदमी, मुकर्रिर आदमी, रोजाना इधर उधर घूमता हूं, मैं साफ आज ऐलान करना चाहता हूं मेरे अजीजों, मैं एक जगह बैठ करके जो पैगाम पहुंचाता हूं, अल्लाह का फजल है, लाखों उसको वैसे ही सुन लेते हैं। बहुत बड़े स्टेज लगाने की, कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं, और ना ही मेरी कोई ख्वाहिश है, और ना ही मैं कहीं पर नजरानी या लिफाफे तय करके जाता हूं, मेरा मामला है नहीं। लेकिन दिल दुखता इस बात पर है, 2000 करोड़ रुपए साल भर में एक स्टेट के अंदर खर्चा हो गए। ठीक है, दीन फैलाने के लिए आपने किए, लेकिन दूसरी तरफ आप पूरा ढूंढ करके निकालो, मुसलमानों के लिए एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है पूरे स्टेट में, एक भी नहीं है। और एक छोटी सी जमात जो 0.5 में जिनका परसेंटेज आता है हिंदुस्तान में,
وہ ایسے دھرم کے لوگ جن کی تقریباً 11-12 یونیورسٹی ایک ایک اسٹیٹ کے اندر یا پورے ہندوستان کو ملا کر، یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے کالج کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو کیا یہ باتوں پر مجھے رکھنا نہیں چاہیے؟ یہ کوئی میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں. کہاں تمہاری رقم جا رہی ہے اور کن مسائل پر انرجی خرچ کر رہے ہو؟ رات کا جلسہ ہو تو گیا، صبح ان کو پکڑ کر کے پوچھو تو یاد بھی نہیں کیا بیان ہوا کیا نہیں. ہاں ہو کرتے رہے، 8 دن کے بعد پورا ہی بھول گئے. پھر کیا بہت بڑا کام کیا دین کا، کون سی تبلیغ کیا؟ ہاں اس کی بنسبت، اس کے بجائے اگر کوئی ایسا ادارہ وہاں پر قائم ہوتا تو میں سمجھتا ہوں یہ 4000 جلسے کی بجائے 4 بھی ادارے ہر سال قائم ہوتے رہے، 10 سال کے بعد دیکھو لہلہاتا ہوا فصل قائم ہو جائے، امت مصطفیٰ کے لیے ایک بہت بڑا قلعہ بن جائے، ایجوکیشن کے لیے، علم کے لیے. اسی لیے میں یہ دعوت آج پیش کرتا ہوں کہ اپنی انرجی ایسی چیزوں پر ضائع نہ کرو جو وقت کی ضرورت نہیں ہے. ان چیزوں میں اپنا ایک ایک روپیہ خرچ کرو جو امت مصطفیٰ کے فیوچر کے لیے اچھا ہو. اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم جتنی بقیہ ماندہ زندگی ہے ہماری، ہمارا ہر پل اور ہر لمحہ امت مصطفیٰ کی خدمت میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. دین اسلام کا ہمیں سچا خادم بنا کر کے اٹھائے اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسول اللہ کا وفادار بنا کر ہمیں اٹھائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.